Hello everyone. In our today's cost sheet numerical session, we are going to add on our next problem on cost sheet. This problem is again different from our previous problems. So concentrate on the question fully, and if you have any doubt in any queries, please comment me. So let's get started with our today's problem. In cost sheet, as you all know, there are a format of ruling which is like this. First column is for particulars, second one is for units, third one is for amount, and last one is also for amount. Like this, first you have to rule out. Then here you have to write production if it is given in the question. Here period if it is given in the question. For which period you are preparing the cost sheet. कितने months के लिए बना रहे हो? 1 month, 2 month या for a year. Now let's look at the question. देखो question में first information which is given in the question is about the opening stock of raw material, opening stock of work in progress, and opening stock of finished goods. So as you all know that our format will start from the opening stock of raw material. So we will start with opening stock of raw material. First we will write opening stock of raw material which is given in the question as 22,000. So I will write this amount in the inner column. Next information given is raw material purchased. How much raw material we have purchased during the year? It is 70,500. So as you all know, we have to add this material purchased during the year to the opening stock of raw material. So add it, purchases of raw material, amount is 70,500. Next is carriage inward, then add carriage inward, it is 2000. Students, ये सारी जो entries है, it is already explained in my previous video. I have already explained all these entries, so I am not wasting too much time in explaining same thing again and again. जो new portion होगा that I will going to explain you. Next is carriage inward. After carriage inward, closing stock of raw material is given, so we have to subtract that from this closing stock of raw material, which amounted to rupees 2350. Add after addition and subtraction we get raw material consumed which amounted to rupees 92,150. Raw material this is raw material consumed. After raw material consumed, we have to add in it raw direct wages and direct expenses. So if it is given in the question, then only we have to add. Yes, it is given in the question, then we need to add it, direct wages and direct expenses. Direct wages is 30,000 and direct expenses is 10,000. It will come 40,000. Then add it to the raw material consumed. It will come 1,32,150. And this will come prime cost. देखो यहाँ तक आपका प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन हो गया है. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट याद करने का तरीका बताई थी. सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर टोटल कॉस्ट, एंड देन फाइनली सेल्स. नाउ आफ्टर प्राइम कॉस्ट वी हैव टू add to it factory overhead if it is given in the question. Now look at the question. Factory overhead, yes, there is factory overhead. Under factory overhead there are various expenses given in the question. First is factory on cost which is amounted to rupees 70,000. Then factory supervision is given over there. Factory supervision is given. So any expenses which is related to factory we have to add it under factory overheads only. So factory supervision is 8,800. Then factory rent is 9,000. that also added over here. Next information given is lighting bill.
Now look at the question, students. For lighting bill, it is not directly given that the total amount of lighting bill is 10,000, and it is not given that lighting bill is related to 100% to factory overheads or 100% to office overhead. There is a bifurcation under it. What type of bifurcation is that? Look at here. Lighting bill total amount given is 10,000, and it is given in the question that out of this 30% is of factory. Out of this 30% is of factory and 20% is of sales department. 20% is for sales department and the balance for office department Now students, how much balance is remaining over here? Look, 100% में से 30% is going for factory, 20% is sales department. That means for office department it will come 50%. Now what we need to do is 10,000 का you have to calculate 10,000 30%, it will come 3,000 rupees, and this 3,000 is related to factory overhead. तो अब हमें ये 3,000 we need to write here in front of lighting bill, and we have to show this calculation under this 10,000 into 30%. 10,000 का लाइटिंग बिल जितना आया था उसका 30% आपको फैक्ट्री ओवरहेड के लिए देना था, 20% सेल्स डिपार्टमेंट के लिए देना था और बचा हुआ ऑफिस डिपार्टमेंट को देना था. तो 10,000 का 30% विल कम 3,000, 20% विल कम 2,000 एंड 50% विल कम 5,000 लाइक दिस. तो इसमें से फैक्ट्री से रिलेटेड कितना था 3,000, तो वो मैंने फैक्ट्री के सामने लिख दी. लाइकवाइज और एक एक्सपेंस है सैलरी ऑफ मैनेजर, और एक इंफॉर्मेशन वहां पे आपको दी हुई है दैट इज सैलरी ऑफ मैनेजर. जनरली हम लोग सैलरी ऑफ मैनेजर अगर इंफॉर्मेशन दी होती है तो हम उसे ऑफिस ओवरहेड के अंदर डाल देते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में अगेन इसके नीचे भी बाइफरकेशन दिया है, उसमें लिखा है कि सैलरी ऑफ मैनेजर जो है, मैं उसका भी यहाँ पे आपको चार्ट दिखा देती हूँ. सैलरी ऑफ मैनेजर जो कि दिया हुआ है टोटल 37,000 and out of which students 30% is for factory. 30% is for factory. That means 37,000 का you have to calculate 30%. It will come 11,100. And this 11,100 is related to factory expenses. तो सैलरी ऑफ मैनेजर के सामने फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप लिखोगे 11,100, ब्रैकेट में लिखोगे 37,000 इंटू 30%. ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन इस क्वेश्चन का नया पोर्शन है, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्टली सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अलग से, ऑफिस के अलग से और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है. टोटल दिया हुआ है कि टोटल लाइटिंग बिल 10,000 है, उसमें से 30% फैक्ट्री का है, 20% सेल्स डिपार्टमेंट का है और बचा हुआ ऑफिस डिपार्टमेंट का है. तो ये जो पोर्शन है जो हमने लाइटिंग बिल और सैलरी ऑफ मैनेजर के केस में देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का नया पोर्शन है. तो ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है कि आगे किसी एक्सपेंसेस में आपको बाइफरकेशन दिया हो, तो बस आपने अगर फैक्ट्री रेंट तक की इंफॉर्मेशन देखे कि फैक्ट्री के नाम पे तो बस इतना दिख रहा है और कैलकुलेट करके छोड़ दिए, तो आपका आगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको पहले क्वेश्चन पूरा एक बार देखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है. अब इसका हम कर लेंगे टोटल. इसका टोटल आता है 1,01,900. लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और उसमें से माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 3,000. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल कम 2,000 और फिर ये तीनों को करोगे आप ऐड. जब आप ये तीनों को ऐड करते हो तो इट विल कम 2,36,050. 2,36,050. 2 मिनट स्टूडेंट्स, मेरा पेन. 2,36,050. इट विल कम फैक्ट. ये 2,36,050 विल नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट
और वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और यू कैन ऑल्सो सेड इट एज ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। पहले देखेंगे वहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। एक तो दिया हुआ है ऑफिस रेंट, तो वो हम लिख देते हैं ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट इज 6000, वो मैंने यहाँ लिख दी। फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो लाइटिंग बिल और सैलरी ऑफ मैनेजर है। स्टूडेंट्स, लाइटिंग बिल का हमें पता था कि ऑफिस से रिलेटेड कितना था 50%, तो यहाँ पे अगेन आप लिखोगे लाइटिंग बिल। ठीक है, ये वर्किंग नोट में आप लोग इसको बना लो, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, जहां आपकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर होके खत्म हो रही है उसके नीचे आप ये या तो नेक्स्ट पेज में इसका वर्किंग नोट ऐसा शो कर देना स्टूडेंट्स, सो दैट आपको बार बार कॉस्ट शीट के अंदर इस तरह से बाइफर्केशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन दिखा चुके हो, तो बस वो अमाउंट आप वहाँ लिख दोगे 5000 रुपीज, सो दैट एग्जामिनर एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि ये अमाउंट आपकी कहाँ से आई है। तो अगर आपने वर्किंग नोट बनाए हो तो ही कैन चेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो कि हाँ वर्किंग नोट में इसने मुझे दिखाया है कि फैक्ट्री का कैसा आया है, सेल्स डिपार्टमेंट का कितना आया है और ऑफिस डिपार्टमेंट का कितना आया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 5000 रुपीज। लाइटिंग बिल के बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन जो थी वो थी सैलरी ऑफ मैनेजर। सैलरी ऑफ मैनेजर के केस में उसने क्या बोला था, 30% फैक्ट्री का था और सेल्स डिपार्टमेंट का उसने बोला है 40%। एंड रिमेनिंग जो था, देखो 100 में से 70 चले गए तो बचे 30, तो 30% इज रिलेटेड टू ऑफिस, राइट। 30% इज रिलेटेड टू ऑफिस। अगेन इसका आप 30% निकालोगे तो इट विल कम 11,100 ओनली, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 11,100। और ये जो है ये है वर्किंग नोट नंबर 2, तो इसके सामने आप दिखा दोगे वर्किंग नोट नंबर 2 लाइक दिस। अब इसे करोगे आप ऐड, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो इट विल कम 22,100। फिर इसके साथ इसको ऐड कर दोगे, इट विल कम 2,58,150 एंड दिस विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बोर्ड में जगह कम होने के कारण मुझे थोड़ा सा इसे मिटाना होगा। देखो सेल्स डिपार्टमेंट का याद रखना, सेल्स डिपार्टमेंट का लाइटिंग बिल आ रहा था 2000 रुपीज़, 2,52,000 ये यहाँ तक हो गया। फिर अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ यूनिट्स में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। ये है 10,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000, प्लस माइनस करोगे तो इट विल कम 8,000। फिर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इट विल कम 2,66,150। Now after cost of goods sold we need to add over here selling and distribution expenses, right? यहाँ पे आपको ऐड करना होगा selling and distribution expenses। selling and distribution expenses के नाम पे एक एक्सपेंस दिया हुआ है, that is rent of sales department, rent of sales department that amounts to ₹6,000। आफ्टर दैट वही लाइटिंग बिल और सैलरी ऑफ मैनेजर था। लाइटिंग बिल का मैंने यहाँ पे बचा के रखी थी, लाइटिंग बिल का आ रहा था हमारा 2,000 रुपीज, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइटिंग बिल, उसके सामने लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 2,000। फिर नेक्स्ट है सैलरी ऑफ मैनेजर, इसके सामने लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी ऑफ मैनेजर 40% फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। 37,000 का आप 40% निकालोगे तो इट विल कम 14,800, वो यहाँ पे लिख दोगे 14,800 लाइक दिस। अब ये तीनों का करोगे ऐड, तो जब इसे आप ऐड करते हो तो इट विल कम 22,800। फिर अभी यहाँ पे जगह कम होने के कारण स्टूडेंट्स मैं ये वर्किंग नोट मिटा दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने नोटबुक में वर्किंग नोट बनाना भूलना नहीं है।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनको करते हैं ऐड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जब ऐड करते हो तो ये आएगा 2,88,950 एंड दिस विल बी नोन एज टोटल कॉस्ट। ये कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, राइट। अब टोटल कॉस्ट के बाद वहां पे क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या आपको सेल्स दिया हुआ है या प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है और वो दी है कि प्रॉफिट इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का आप निकालोगे 10%। टोटल कॉस्ट था 2,88,950, इसका 10% निकालोगे तो आएगा 2,88,995। फिर इन दोनों को कर दोगे ऐड तो यू विल गेट योर सेल्स दैट अमाउंट्स टू रुपीज 3,17,845 लाइक दिस। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन कॉस्ट शीट का। यहाँ पे नया जो आपने देखे वो वर्किंग नोट बनाना सीखे हैं वो आपने आज के प्रॉब्लम में। उसमें आपको ध्यान रखना है कि कंबाइंड में आपको एक्सपेंस दे दिया होगा जिसमें कि फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी एक्सपेंसेस है वो सब मिला के एक एक्सपेंस दिया है और उसमें से उनको आपको बाइफरकेट करना है प्रॉपरली। और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना है एक्सपेंसेस उतना एक्सपेंसेस उस डिपार्टमेंट में आपको डालना है। ध्यान रखिए कि आज का जो हमारा पॉइंट था जो हम लोग ने नया सीखे वो था ये वाले कैलकुलेशंस। उसके सामने मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। जैसा मैंने वर्किंग नोट आपको बताई वैसा आपको वर्किंग नोट अपने नोटबुक में भी बनाना है, ठीक है, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि कहाँ से ये अमाउंट कहाँ से आया पता नहीं, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप वर्किंग नोट बनाते हो तो आपको नीचे कॉस्ट शीट में ये कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आपको हर एक इसमें ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है। ओके, आई होप स्टूडेंट आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सेम टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैडम आप दीजिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये क्वेश्चन के पीडीएफ के नीचे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम टाइप का मैं उसका भी पीडीएफ सेंड करती हूँ। आप लोग वो भी सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आज का क्लास आपको सम्स आपको पूरा समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। गुड बाय।